Alright, so let's continue solving these numericals. Check this one, 31st numerical. Um, Equivalent capacitance of the combination shown in the figure. So as you can see here, this third capacitor, these two terminals are connected. So this is shorted. So we can remove this capacitor here. Only these two will remain in this circuit and they both are in parallel combination. So parallel combination equivalent circuit is, sorry, equivalent capacitance will be the combination of these two. दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर. तो ये इसको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से क्योंकि दोनों टर्मिनल जो है कनेक्टेड है. सो वी कैन रिमूव दिस कैपेसिटर फ्रॉम द सर्किट. नाउ लेट्स गो फॉर द 32 dimensional analysis. Dimensional analysis, it is related to dimension analysis. Okay, check this one. Here if f, acceleration and time are chosen as fundamental quantities, then we need to find out the dimension of energy here. So energy and work, they both are having same dimension. वर्क का फार्मूला क्या आता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस को एल ले लेते. ठीक है. अच्छा, सो वर्क, we need work and energy, they both are having same dimension. Force, so we have to use force in the dimension. Force is already there. We need to introduce acceleration. Acceleration का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर इज़ ऑलरेडी देयर, लेंथ इज़ ऑलरेडी देयर, ऑल वी नीड इज़ सेकेंड स्क्वायर. तो सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं. तो यू विल सी, यू विल नोटिस force is there, this is acceleration and time square. Force one time, acceleration one time, time second square, so two times. So which option is correct here? Second option is correct here. ठीक है. There is one more way to find out the dimension. This is the way. ठीक है. Force power raised to x, acceleration y and time z. Then we can compare the dimension on both the side. Okay, and by the principle of homogeneity we can find out the values of x, y and g, but that will be a lengthy step. This is the another way to solve these type of numericals. Now let's solve this one. This is related to Newton's law of cooling. ठीक है. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखो क्या दिया गया है. फार्मूला क्या है बेसिकली? डी थीटा टेम्परेचर डी टी के. अब यहाँ पे जो आता है ना, एवरेज टेम्परेचर आता है थीटा वन प्लस थीटा टू माइनस रूम टेम्परेचर. ठीक है. तो कॉफ़ी इज़ कूलिंग फ्रॉम 90 to 80 डिग्री सेल्सियस इन टी मिनट्स. तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 का इन टी मिनट्स. ठीक है. देन यहाँ पे एवरेज कितना आएगा? 18, दैट विल बी 85. एवरेज 85 आ जाएगा. रूम टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस. This will be K 65 degree Celsius. ठीक है. Then the time taken by similar cup of coffee to cool from 80 to 60. अब 80 to 60 जा रहा है. कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 का. इन टाइम 2 ले लेते, इसको टाइम 2 ले लेते, और टी डैश कुछ भी ले लो. ये इनिशियल टाइम है, ये सेकेंड टाइम है, आई मीन लेटर. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब 80 और 60 का एवरेज कितना आएगा? 80 प्लस 60 140 बाई 2 70. ये 70 बीच का नंबर आएगा, 70. then this will be 50. So let's divide these two and let's get the value of T2. So if we divide it, T2 T1 कुछ भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं. के विल गेट कैंसिल. 65 बाई 50. ठीक है. अभी 1 0 कैंसिल हो जाएगा. 1/2 बचेगा ना. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये 25 हो जाएगा, राइट ना. ये फर्दर 13 5 जा एंड 5 5 जा. T2 will be, so which option is correct here? 13. This option is correct here. Okay, so do check the calculation. Let's move on. Let's move on for the 34th. 34th में क्या बोला है देखो.
effective resistance of parallel combination, effective resistance of parallel connection that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section, same material. मतलब उनका resistance भी same रहेगा. 4 wires are there. 1 2 3 4 are there. सबका resistance same है. R R की वैल्यू हमें निकालनी है. फर्दर इट इज़ मेंशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है. तो देखो R पैरेलल में कनेक्ट करना है. ठीक है, ये फार्मूला होता है. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP दिया हुआ है. सो यहाँ पे हम लोग इसका अरेंज करते हैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 0 ठीक है 0.25 R. तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है. ठीक है, हमें R की वैल्यू निकालनी है. R की वैल्यू निकालनी है हमें. तो देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2.4 0.25 कब आएगा, जब R की वैल्यू 1 होगी. ठीक है, R की वैल्यू 1 रखते हैं. तो 0.25 आ गया. ठीक है, यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं. अगर यहाँ पे यह 1 रखता हूँ तो ही इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो 0.25 आएगा. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है. एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली मिस्टेक किया है. देखो आरपी की वैल्यू दी है 0.25 इक्विवेलेंट जो है R डिवाइडेड बाई 4. तो इसको मैं अरेंज करता हूँ तो R की वैल्यू 1 ओम आ जाएगी. तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम. ठीक है, 1 ओम. ठीक है, माई पार्डन, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था. चलो कोई बात नहीं. ठीक है ना, सबकी वैल्यू 1 है, तभी तो RP 0.25 आ रही है. अब देखो आगे क्या पूछा है. व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो एक की वैल्यू R1 ओम है, तो सबको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा 4 ओम. तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. अब 35th वाला सॉल्व करते हैं. उप्स 35th वाला देखो क्या है बेसिकली. अ नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ. देखो यहाँ पे बेसिकली पावर क्या होता है, एनर्जी मेरे पर यूनिट टाइम. अब लाइट की केस में एनर्जी कितना बनता है HC बाय लैम्बडा. ठीक है, और T. ना दिस इज़ फॉर 1 फोटोन. इफ़ देर आर n नंबर ऑफ फोटोन, so दिस इज़ द फार्मूला है ना. HC फोटोन का एनर्जी क्या बनता है C बाय लैम्बडा. दिस इज़ फॉर 1 फोटोन. इफ़ देर आर n नंबर ऑफ फोटोन्स देन HC बाय लैम्बडा. ठीक है, तो पावर क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम. सो n बाई टी, इसकी रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है. ये जो रेशियो बन रहा है n बाई टी, इसको अरेंज करते हैं n बाई टी को. तो देखो क्या बन जाएगा P लैम्बडा HC. ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं फार्मूले में. देखो वैल्यू पुटअप करते हैं. लेट्स पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला. पावर दिया हुआ है. लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, वेवलेंथ कितनी है 600 नैनोमीटर. नैनो मतलब -9. अब H कितनी है एंड ओ डियर लॉर्ड. हाँ बराबर. HC की वैल्यू कितनी है. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, देखो ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक है, एंड देखो इसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ यहाँ पे. हाँ देखो ये तो 2 टाइम में जाएगा. 3 × 2 6, तो ये कटा. ठीक है, अब देखो सारे पावर्स बच गए. ऊपर कितना बचा 10⁻³ 10⁻⁹. और इसका जो 100 का 2 पावर था. नीचे कितना बचा 10⁻34. वो ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा. 8 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, इन सब को अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो ये 12 हो जाएगा. 12 - 8
20 20 और ये 36 हो जाएगा, 36 में से 20 गया तो 16 बचेगा, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट ईयर। चेक कर लेना एक बार फिर भी एनीवे। लेट्स मूव ऑन टू दिस वन 36 वाला। 3 registers having register R1 R2 R3, R1 R2 R3 is there, current is getting divided here. ओके, करंट डिवाइडर फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ दैट एक्चुअली, I2 फ्लो हो रहा है R2 से, I3 फ्लो हो रहा है R3 से। हमें क्या निकालना है, I3 बाई I1 का रेशियो निकालना है। तो I3 कैसे निकालेंगे, मेन करंट दैट इज़ I1 और यहाँ पे रजिस्टर्स का रेशियो बनता है। देखो नीचे दोनों का कॉम्बिनेशन आता है R2 प्लस R3, और यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, देखो I3 है ना, I3 को ज़्यादा होने के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों, अगर R2 बड़ा है तो ज़्यादा करंट यहीं से फ्लो होगा, है ना। तो I3 को बड़ा होने के लिए इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज करंट विल प्रेफर द लीस्ट द पाथ विच इज हैविंग लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R2 बड़ा है तो R3 की ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो होगा, मतलब R3 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये फार्मूला ये ध्यान में रखना। इसको अरेंज करते हैं, तो R2 प्लस R3, ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, R2 प्लस R3, ये वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, ओके नाउ लेट्स मूव ऑन। दिस वन वाज लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, इसको देखते हैं थोड़ा, ये क्या बोला है यहाँ पे, एक सेकेंड ना। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर में, मीन्स 2f पे रखा है, तो मेरा इमेज भी 2f पे ही फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे ड्रा करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सपोजिट ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, तो मेरा इमेज भी 2f पे, ये 2f है 60 सेंटीमीटर, तो ये साइड 2f पे ही मेरा इमेज भी फॉर्म होगा। चलो इतना तो मुझे पता है, ये तो बेसिक है। तो ये रेज आ रही है यहाँ से, वो कन्वर्ज होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 2f पे ही मेरा होगा इमेज फॉर्म। अब आगे क्या बोला है, ये 60 सेंटीमीटर है। एक सेकंड ना, सॉरी। अब यहाँ पे बीच में मिरर भी रखा है, यहाँ पे मिरर रख देते एक, यहाँ पे बीच में एक मिरर रख देते हैं, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे बीच में एक मिरर रख देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया, मिरर हो गया। अब देखो मिरर रखा है, तो मिरर क्या करेगा बेसिकली, मिरर कितने पे रखा है, 40 सेंटीमीटर पे रखा है, और ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर पे। अब बेसिकली ये जो इसमें ना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मेरा फाइनल इमेज वापस से यहीं पे बनेगा और वो वर्चुअल बनेगा। कैसे बनेगा इसको देखते हैं थोड़ा। अब देखो, अगर मिरर नहीं होता तो मेरा इमेज यहाँ पे बनता, लेकिन बीच में मिरर है, तो ये जो इमेज यहाँ पे बन रहा है मिरर के अंदर, वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा एंड यहाँ पे रियल इमेज यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट वापस से एक इमेज मिरर बनाएगा, इसी को रिफ्लेक्ट करेगा बाहर 20 सेंटीमीटर पे। अब ये जो रियल इमेज है, इट विल एक्ट एज अ object for this lens. Are you guys getting? This image will act as a object for this lens, और एक और रिफ्रैक्शन होगी और एक और इमेज बनेगा, जो फाइनल इमेज है वापस यहीं पे बनेगा। कैसे, वो चेक करते हैं। ये देखो, अब ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है विच इज़ एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ विद इन द फोकल लेंथ, है ना, इट इज़ विद इन द फोकल लेंथ। कैसे पता चला, फोकल लेंथ कितना है इसका, 30 सेंटीमीटर है और ये 40 के अंदर ही है बेसिकली। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ विद इन द फोकल लेंथ, हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर है तो उसका जो इमेज है ना वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनता है ऑन द सेम साइड, वर्चुअल बनता है एंड मैग्नीफाइड बनता है। तो यहाँ पे ही मेरा वापस से फाइनल इमेज बनेगा, दैट विल बी वर्चुअल इमेज। ठीक है, और देखते फिर उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते कैसे बनेगा वो। एक सेकेंड,
उसका डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वी हमें वापस से यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो अब ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो मिरर का प्रॉपर्टी है। अगर ये डिस्टेंस 20 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है वो सेम ही होता है बेसिकली। तो हमारा फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा था 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वो उसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे रियल इमेज प्रोजेक्ट करेगा। ये रियल इमेज विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। वापस से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, और बेंड होके रे वापस से यहीं पे फाइनल इमेज बनाएगी। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट है इसको, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना बनेगा बेसिकली, ये पूरा ये 40 है, ये 20 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस भी 20 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि अब रे यहाँ लेफ़्ट टू राइट जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में रेज जाती है उसी डायरेक्शन में हम कन्वेंशन भी लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुटअप करता हूँ, v बाय कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको ये साइड लेंगे तो v की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 1/30 माइनस 1/20। एलसीएम ले लो 60। अब 30 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 2 टाइम में। 20 के टाइम में 3, 20 के टेबल में 3 टाइम में, -1/60। तो इसका मतलब क्या हो गया, -60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो -60 सेंटीमीटर किधर है, ये 40 + 20 60, मतलब मेरा जो फाइनल इमेज है वो यहीं पे बनेगा और वो वर्चुअल होगा, ठीक है। तो अब 60 सेंटीमीटर तो दिया नहीं है ऑप्शन में, फ्रॉम द लेंस 60 है ना, तो फ्रॉम द मिरर कितना हो जाएगा 20। तो ये वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। थोड़ा लेंदी था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आप इसको छोड़ भी सकते थे वैसे बेसिकली। तो देखो क्या हो रहा है, अगर मिरर नहीं होता तो इमेज यहाँ पे बनता, मिरर है बीच में तो वो इस इमेज को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, और ये जो इमेज है इट विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, एंड थ्रू सेकेंड रिफ्रैक्शन, इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये इट विल गो लाइक दिस, बेंड लाइक दिस, बट अगेन द parallel virtual rays will go this way, virtual rays will go this way, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज ही बनेगा बेसिकली यहाँ पे। एनीवे 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वो ऑप्शन में है नहीं, सो फ्रॉम द मिरर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर वर्चुअल इमेज। लेट्स मूव ऑन। अच्छा ये लॉजिक गेट से रिलेटेड है, यहाँ पे इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। ये देखो 0 1, सॉरी 0 है वो 1, ठीक है। इसको पहले चेक करते हैं, 0 बी भी 0, ये आप 0 C 1 है, एंड गेट है 0, एंड गेट है 0 बनना चाहिए था लेकिन 1 बनेगा, 0 बनना चाहिए था ना, लेकिन ये नैंड गेट है, सॉरी नैंड गेट है तो कम्प्ली वो इन्वर्स हो जाएगा। फिर 0 1 और यहाँ पे 1 बनना चाहिए था, लेकिन एक सेकेंड ना, समथिंग इज, लेट्स चेक इट वंस अगेन। 0 0 1, A0 B0 B0 1, चलो ठीक है, ये तो 0 ही बनेगा। इसको भी 0 बनना था, लेकिन क्योंकि ये नैंड है तो वो उसको इन्वर्ट कर देगा, तो 0 की जगह यहाँ पे 1 हो गया, चलो ठीक है। अब देखो और में क्या बनता है, और में 0 1 1 बनता है, ठीक है, लेकिन ये 1, सॉरी ये 1 ही बनेगा यहाँ पे। मुझे ये बबल्स थोड़ा, ये बबल्स मैंने सोचा यहाँ पे, सॉरी बबल वहाँ पे नहीं है, वो और गेट ही है, ठीक है। तो 1 बनेगा, फर्स्ट जो मेरा आउटपुट है वो हाई आएगा। देखो ना ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे लगा ये बबल नहीं है, ये बबल जनरली नॉर गेट में यहाँ पे होता है, सॉरी ध्यान में रखना, जैसे कि यहाँ पे बबल है। अच्छा नेक्स्ट आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। पहले तो 1 आ गया, सेकंड क्या है, कलर चेंज करता हूँ मैं, सेकंड वाला कौन सा है देखते हैं, हाई 1 0 1,
क्या है 1 0, इसमें भी 0 आएगा 1। चलो मैं इसको सबको उड़ा देता हूँ, एक सेकेंड सबको क्लियर कर देता हूँ। पहला तो हाई आया था, कोई बात नहीं, पहला हमें पता है। सेकेंड वाला चेक करते हैं 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है। हाई लो हाई, ये तो ज़ीरो ही बनेगा। इसको भी ज़ीरो बनना था लेकिन इसको इन्वर्ट कर देगा 1 बनेगा। 0 1 वापस से 1 बनेगा। सेकंड भी हाई है तो देखो ये इसमें पहला लो आ रहा था ना, इन दोनों को चेक नहीं करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इसमें पहला हाई था, इसमें भी पहला हाई है, इसमें सेकंड हाई आ रहा है, इसमें सेकंड लो आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन ही करेक्ट है। आप थर्ड भी चेक कर सकते हो। थर्ड क्या है, थर्ड चेक करते हैं। दो तो हमारे हाई आ गए, थर्ड चेक करते हैं। बहुत लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं। इसे आप चेक, उप्स, हाँ या ये क्या है, ये लो हाई लो है ना, तो लो हाई लो, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। इसको ज़ीरो होना था लेकिन ये इन्वर्ट हो जाएगा, नैंड गेट है। 0 1 1 वापस से हाई आया, मतलब सब में हाई आएगा बेसिकली, चेक कर लेना। थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर। अब देखो ये वाला देख लेते, 39 देख लेते हैं क्या है बेसिकली। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड AC मेंस सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, दिस इज इनपुट ऑपरेटेड एट 11 वोल्ट, मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट 44 वोल्ट लैम्प, ये आउटपुट है। ये पावर है बेसिकली, पावर दिया है। इग्नोरिंग पावर लॉस, इसका मतलब क्या हो गया, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर इन द ट्रांसफार्मर, व्हाट इज़ द करंट इन द प्राइमरी सर्किट। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं ना, P इज इक्वल टू आई बी, पावर दिया है, करंट इन द प्राइमरी निकालना है। प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, 220 है ना। इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 2/10 हो जाएगा राइट, ये 0.2 है ना, ये 2 टाइम में जाएगा 2/10 एम्पियर। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर, दिस वन, ठीक है। ओके, आई होप माई कैलकुलेशन इज़ करेक्ट। आउटपुट में भी वही बनेगा, आउटपुट में भी हम चेक कर सकते हैं। नहीं, आउटपुट करंट नहीं पूछा ना, करंट चेंज हो जाएगा, पावर विल बी द सेम, करंट चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है ना, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 40th वाला, 40th। यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A and resistance are wound up as a current carrying coil in the shape of equilateral triangle, equilateral triangle है, तीनों आर्म्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब 12A का लेंथ है तो कितने राउंड बनेंगे इधर, 3 राउंड बने, 4 राउंड बनेंगे, 4A 4A 4A, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगी 4, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स 4 राउंड बनेगी। 4 तियाँ कितना होता है, 12 होता है, 4 राउंड बनेगा। हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका फार्मूला क्या होता है, NIA। अच्छा, सिर्फ हमें एरिया का वैल्यू निकालना है, एन की वैल्यू तो हमें मिल गई है, 4 हो गई, ठीक है। करंट की वैल्यू नहीं निकालनी है, उसको ऐसे ही रखनी है। एरिया निकालते हैं, इसका एरिया कितना बनता है, एक सेकेंड है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कितना बनता है, एक सेकेंड में इसको नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। एरिया देखते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला आता है हाफ बेस, बेस तो 4 है, बेस इंटू हाइट, हाइट की इसकी एक्सप्रेशन कितनी बनती है, √3/2 साइड 4 है, √3/2 4 है, हाँ, 1/2 इंटू 4 है, √3/2 साइड 4 है। अब 2, ये देखो √3/2, ठीक है। अब ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। आई होप आई एम डूइंग इट प्रॉपरली। क्या होता है फार्मूला, एक सेकंड में फार्मूला भूल गया, एक सेकंड ना, नहीं नहीं फार्मूला बराबर है,
साइड की वैल्यू है ए, 4A नहीं है, 4 तो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 4 तो नंबर ऑफ टर्न्स है, साइड की वैल्यू ए ही है बेसिकली, ठीक है, 4 टाइम्स टर्न किया उसको, चलो ठीक है। अब देखते हैं, हाँ यही फार्मूला बनता है यहाँ पे। एक सेकेंड ना, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, वापस से कर देते इसको। अब h की वैल्यू ये हो जाएगी, h की वैल्यू जो है ना, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, हाइट होती है √3/2 साइड की वैल्यू। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया की वैल्यू होगी हाफ, बेस ए हो गया, हाइट और साइड ए हो गया, ठीक है। अब ये 1/4 हो जाएगा, √3a² हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते। n 4 थी ना, i की तो ऐसी आई आएगी, ठीक है, 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा i √3a², तो ये वाला ऑप्शन में आ रहा है, एक ही में आ रहा है बेसिकली वो, तो यही करेक्ट होगा। हम स्क्वायर के लिए भी चेक कर लेते हैं, स्क्वायर का 4 टर्म है तो 3a 3 टर्न बनेगा, ठीक है, 3 टर्न्स बनेंगे। और उसका एरिया का फार्मूला क्या होगा, a², है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी यहीं पे चेक कर लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। कितने टर्न्स है, 3 टर्न्स है, आई कितना, आई रहेगा, एरिया कितना है a², 3ia², तो ये वाला ऑप्शन है करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ी मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे साइड ए है, नंबर ऑफ टर्न्स 4 और है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ऑलराइट। तो ये थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है बेसिकली एग्ज़ाम में भी, तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। चलो लेट्स मूव ऑन देन। ओह दैट वाज द लास्ट या 40th वन, ठीक है। अगर कुछ रॉन्ग हुआ रहेगा तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट कर देना।